Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I welcome you to the lecture number 2 of EDC. In the previous lecture, after some revision concepts, we started the revision of the amplifier circuits that we did in the last semester. I suggest all of you to thoroughly go through all the topics and the numericals that we are doing again, because whatever I am teaching and covering and revising in this course will be part of the papers. That means even if previous topics are getting covered over here, they will be asked in exam. First thing. The second thing is that all the concepts that I am revising over here will be forming the base for the upcoming difficult topics. So if your basic concept is not clear, you will not be able to understand the future topics. In order to clearly understand the future topics, you should have a concrete base of all the concepts taught in the previous lecture and in this lecture. So let us now continue. Okay, so now here we are given a common source amplifier. Of course ये पेपर में बताया हुआ नहीं होगा कौन सा एम्पलीफायर है. You will have to identify yourself. Let us see that the AC input signal is being applied on the gate terminal of the MOSFET, and the output AC voltage will be collected from the drain terminal of the MOSFET. This thing clearly indicates that this is actually a common source amplifier. Details आपको पता होंगी. Now they are asking us to determine the small signal gain and input resistance of the amplifier. कह रहे हैं कि small signal gain और input resistance find करें. Some constant values have already been given, जो कि आमतौर पे given होती हैं. One new parameter is given, which is the value of VA. Please recall that while studying the internal models of the MOSFET, हमने देखा था कि जब channel length modulation consider कर रहे थे तो R0 यूज़ हुआ था, और R0 का फॉर्मूला था basically VA over ID. So despite of the fact that it is not mentioned here anywhere that we either have to consider or not consider the channel length modulation, we still have to consider it, because the presence of this voltage clearly indicates that we have to consider the effect of channel length modulation. ठीक है, तो VA की वैल्यू से चूँकि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की रेजिस्टेंस निकलती है R0, इट इज़ अंडरस्टूड कि हमें चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कंसीडर करना है. वन मोर थिंग इज़ गिवन दैट दे आर सेइंग कि कैपेसिटर्स को इतना लार्ज वैल्यू को कंसीडर करें कि वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करें एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट. चाहे शायद ये चीज़ लिखी हुई ना भी होती, हमने पहले ही अजम्पशन की है कि इस वक्त जो मॉसफेट में कैपेसिटर्स लगे हुए होंगे, एक्सटर्नल कैपेसिटर्स, वो इतने लार्ज होंगे और हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होगी कि कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे. अगेन मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करी हूँ. दिस पॉइंट हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. अच्छा, नाउ वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द DC एनालिसिस. DC analysis के लिए I told you that we remove all the AC sources. So let us first of all identify where these sources are. I can only see this AC voltage source present in the circuit, और इसको हटाने का क्या तरीका होगा? I will be short circuiting it. ऐसा ही होगा. अच्छा, ये शो करने की ज़रूरत मुझे यहाँ इसलिए नहीं पड़ी कि ड्यूरिंग द DC एनालिसिस I told you कि कैपेसिटर्स जो है वो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, DC के ऊपर, दे बिकम ओपन सर्किटेड. सो जब मैंने इस कैपेसिटर को ओपन सर्किट किया तो ये पूरी की पूरी ब्रांच पहले ही रिमूव हो गई. तो इस कैपेसिटर के ओपन होने से जब ये पूरी ब्रांच ही रिमूव हो गई तो मुझे दिखाने की ज़हमत ही नहीं पड़ी कि भाई ये जो है वो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ रिमूव हो चुकी है. तो मैंने शायद प्रीवियसली कहीं बताया था कि कैपेसिटर समटाइम्स दे आर यूज टू सेपरेट द DC एंड द AC पार्ट. तो यहाँ इसकी बड़ी क्लियर एग्जांपल है कि जब ये कैपेसिटर ओपन हुआ तो DC वाला हिस्सा यहाँ पे मौजूद रह गया, AC वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया. तो यहाँ बड़ा क्लियर पता चल रहा है कि जो कपलिंग कैपेसिटर्स हैं, ये बेसिकली कपलिंग कैपेसिटर है क्योंकि सिग्नल को सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर रहा है. कपलिंग कैपेसिटर बाज़ औक़ात AC और DC सिग्नल के पोर्शंस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं. दैट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम हेयर, ऑब्वियस फ्रॉम हेयर.
अच्छा, इस केस में अगेन if the capacitor becomes open during the DC analysis, so this part will also be completely removed. यहाँ से पूरा का पूरा वो पोर्शन हटा दिया गया है. So we are left with this remaining circuit which is actually the DC circuit, and we have solved such circuits very easily in numericals 1 to 4. उसमें हम ये already solve कर चुके हैं. Please note कि मैंने ये इक्वेशन करंट की यूज़ की है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सैचुरेशन रीजन फॉर द मॉसफेट, अगर याद हो. ठीक है, मॉसफेट की सैचुरेशन रीजन की इक्वेशन क्यों यूज़ की है? बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हेन एवर द गेट एंड द ड्रेन टर्मिनल्स आर शॉर्टेड टुगेदर with a resistor or without a resistor, the gate and drain voltages are the same, and this represents the saturation region. So I am not repeating the complete detail. ये डिस्कस हो चुका है कि गेट ड्रेन वोल्टेज जब भी बराबर होता है, जो रीजन सैचुरेशन होता है, सैचुरेशन की करंट इक्वेशन आ गई. अच्छा, VGS बराबर होता है VG माइनस VS के, और इस VGS यहाँ पे सोर्स का वोल्टेज क्या है? ज़ीरो है. ठीक है, ये चीज़ पूरा ज़ीरो हो गया. तो VGS VD के भी बराबर है और VG के भी बराबर है. कैसे बराबर है ज़रा इसको एस्टिमेट कीजिएगा कि जब सोर्स वोल्टेज ज़ीरो होगा और गेट और ड्रेन वोल्टेज दोनों जो है वो आपस में शॉर्ट हैं, तो जो ड्रेन वोल्टेज है वो गेट वोल्टेज है, और VGS इस वक्त यहाँ पे सोर्स के ज़ीरो होने की वजह से VG के बराबर है. तो VGS VG VD ये तीनों के तीनों आपस में बराबर आ गए. ओके. अच्छा, what we are actually trying to find with this DC analysis, करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं resistors की, they are already available. Why are we performing the DC analysis? We are actually finding the drain current, the drain voltage, the gate voltage and the source voltage. Out of all these, source voltage is already 0. तो मुझे 3 parameters find करने हैं from this DC analysis. मैंने क्या किया? मैंने ओम्स लॉ लगाया. ठीक है. अच्छा, ओके. नाउ द थिंग इज दैट मुझे मोड ऑफ ऑपरेशन मॉसफेट का पता है सैचुरेशन. मैंने ओम्स लॉ लगाया. 15 माइनस VD ओवर RD बराबर होगा करंट ID के. ये वाली मैंने इक्वेशन लिखी. VD की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने VD की वैल्यू निकाली, तो 15 माइनस ID RD बच गया. तो अब चूँकि VD की एक्सप्रेशन मैंने जनरल एक्सप्रेशन निकाली है. क्यों निकाली है? क्योंकि ना मुझे ID की वैल्यू पता है, ना मुझे VD की वैल्यू पता. आई डोंट नो द वैल्यूज़ ऑफ बोथ VD एंड ID. आई एम सम हाउ मेकिंग द अरेंजमेंट्स टू कैलकुलेट बोथ VD एंड ID. तो मैंने क्या किया? VD को ID के टर्म में निकाल लिया. अच्छा, जो VD के एक्सप्रेशन आया यकीनन वही VG का एक्सप्रेशन भी होगा. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. लेट अस सी. अच्छा, अब सिंस वी नो दैट द मोड ऑफ ऑपरेशन इज सैचुरेशन, आई अप्लाइड द इक्वेशन ऑफ सैचुरेशन रीजन. इंस्टेड ऑफ VGS मैंने क्या किया? VS तो ज़ीरो है, VG की वैल्यू पुट कर दी. वो क्या थी? 15 माइनस ID RD. VT एज इट इज़ पुट करा. बाकी K एंड W बाई L इन सब की वैल्यूज़ गिवन थी. 0.25 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये आंसर आ जाएगा. ये मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं. 15 और 1.5 को आई कैन सॉल्व दीज. द आंसर विल बी 13.5 माइनस ID RD विल रिमेन. नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर. इसका स्क्वायर होगा, फिर आखिरी टर्म का स्क्वायर होगा, फिर 2A इंटू B माइनस के साथ होगा. ठीक है ना. तो 13 अच्छा, इसमें से मज़ीद ये कि द वैल्यू ऑफ RD इज़ ऑलरेडी नोन. द वैल्यू ऑफ RD इज़ 10 किलो ओम. सो आई हैव प्लेस्ड इन दैट वैल्यू. ये सब लिखा. 13.5 का स्क्वायर माइनस 2 पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, ये आ गया. वी कैन एक्सपेंड दिस टर्म. 13.5 का स्क्वायर आ गया. 2 इंटू 13.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3. ये एक्सप्रेशन बन गई. एंड लास्टली 10 का स्क्वायर 100, 10 की पावर 3 का स्क्वायर, 10 की पावर 6 ID का स्क्वायर. वी कैन मल्टीप्लाई विद द टर्म प्लेस्ड आउटसाइड द ब्रैकेट. ये सब आपके पास आ गया.
अच्छा, आईडी की दो वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास. वी विल बी सेलेक्टिंग दैट आईडी फॉर विच VGS इज ग्रेटर देन, फॉर विच VGS इज़ ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ये बात आपको याद है कि जब कभी भी हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी दो वैल्यूज़ निकलती हैं, वी ऑलवेज कैलकुलेट द गेट टू सोर्स वोल्टेज विथ बोथ ऑफ द अवेलेबल वैल्यूज़, और उनमें से जो भी हमें थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वोल्टेज दे दे, हम वो गेट वोल्टेज भी रख लेते हैं, और वो गेट वोल्टेज जिस वैल्यू की वजह से आया होता है वो भी रख लेते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास आईडी जो है वो आ गया बेसिकली आपके पास 1 मिली एम्पेयर के करीब. मैंने इससे गेट वोल्टेज फाइंड करा और ड्रेन वोल्टेज फाइंड करा, दोनों बेसिकली बराबर हैं. 15 माइनस 1.06 मिली एम्पेयर 10 के. ड्रेन का वोल्टेज आ गया मेरे पास 4.4 और गेट का वोल्टेज भी यही आ गया 4.4. अच्छा, please also note that despite of the fact that GM is a term which is used during the small signal or the AC analysis, we calculate it during the DC analysis because it is dependent on all DC parameters. ठीक है, I think there is some mistake over here. 2 यहाँ का मिसिंग हो गया है और GM की वैल्यू जो है, ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है. GM जो है आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया. VDS VGS आपका आ चुका है 4. GM की आपके पास ये वैल्यू आ गई. ओके, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ GM वी विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन रेजिस्टेंस विच इज़ R0, बिकॉज इट्स वैल्यू इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द DC पैरामीटर्स, जो कि ID है. VA वॉज ऑलरेडी गिवन, ID you have just calculated. R0 is 47 kilo ohm. Once we are done with all the calculations of the DC analysis, we will switch to the AC analysis. And for AC analysis, now you will be going back to the original circuit that was given in the question. Circuit में जो original circuit था आप उसी पे दोबारा जाएंगे और अब आप इसमें से तमाम के तमाम DC sources को remove करेंगे और जो है AC को रखेंगे और जितने भी कैपेसिटर्स नज़र आ रहे होंगे उसको शॉर्ट करेंगे. तो सबसे पहली बात, आई कैन सी 1 DC सोर्स प्रेजेंट ओवर हेयर 15 वोल्ट. 15 वोल्ट को जब मैंने शॉर्ट किया तो उसकी जगह ग्राउंड आ गया. कैसे ग्राउंड आ गया? इस एरो हेड और 15 वोल्ट का क्या मतलब था, मैंने पीछे कहीं पे शो करा है आप लोगों को वोल्टेज डिवाइडर वाले सर्किट के अंदर. इस एरो हेड और 15 वोल्ट का मतलब है कि यहाँ एक DC सप्लाई लगी है 15 वोल्ट की. जब आप उसको शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसकी जगह पे ग्राउंड आ जाएगा. बहरहाल अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन अगेन, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, AC सोर्स यहाँ पे मौजूद रहेगी, VI इट इज़ हेयर. कैपेसिटर विल बी शॉर्टेड, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, डायरेक्ट जुड़ गया. Similarly, this capacitor will also be shorted, ये रह गया. So now this is the resultant circuit for which we will be performing the small signal analysis. First of all, since it was given in the question that R0 is present, क्योंकि VA given था, तो R0 वाला मॉडल मैंने उठाया. सबसे पहला काम मैंने ये किया कि जो बेसिक इंटरनल मॉडल था ऑप एम्प का, मैंने MOSFET का, वो मैंने बना दिया. इसके बाद गेट के ऊपर क्या चीज़ें हैं वो मैं बनाऊंगी, सोर्स के ऊपर क्या चीज़ें हैं वो बनाऊंगी, ड्रेन के ऊपर क्या क्या है वो बनाऊंगी. सबसे पहले क्या मैं देख सकती हूँ कि सोर्स के ऊपर मुझे सिंपली एक ग्राउंड प्लेस कर देना चाहिए. यही काम मैंने किया है कि सोर्स टर्मिनल को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया. गेट टर्मिनल को देखें, गेट टर्मिनल, ये पॉइंट आपका गेट टर्मिनल है. गेट टर्मिनल पे लगी हुई है ये आपकी VI सप्लाई. ठीक है, गेट पे, अभी मैं इस RG की बात नहीं कर रही, गेट पे लगी हुई है ये आपकी VI सप्लाई. यही मैंने किया कि गेट के ऊपर ये VI सप्लाई लगा दी. अच्छा, बाय मिस्टेक मैंने इसका नाम VIN कर दिया, इट वाज VI. ठीक है. अच्छा, ड्रेन के ऊपर आ जाइए. ड्रेन के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, सी दैट ड्रेन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर 2 रेजिस्टेंसेज हैं. कौन सी? एक RD है जिसका दूसरा टर्मिनल है ग्राउंड. ड्रेन के ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, मैं इस V0 की बात नहीं कर रही हूँ इस पर. ड्रेन के ऊपर एक दूसरी रेजिस्टेंस है, उसका नाम है RL और उसका दूसरा टर्मिनल है ग्राउंड. तो मैंने क्या किया, ये तो R0 तो लगा हुआ था, ये है ड्रेन का टर्मिनल. मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया.
और मैंने आर डी और आर एल को पैरेलल में बनाया। क्यों पैरेलल में बनाया? कि इन दोनों का ये पॉइंट कॉमन है आर डी और आर एल का, और दोनों का दूसरा एंड ग्राउंडेड है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि भले ये ऊपर की डायरेक्शन में बना है या नीचे की डायरेक्शन में बना है, दे बोथ आर इन पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि दोनों का ये टर्मिनल कॉमन, दूसरा का दोनों एंड ग्राउंड। तो आर डी एंड आर एल आर एक्चुअली इन पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो ड्रेन की जो मेरे पास वायर निकल रही होगी, मैं उस पर आर डी और आर एल दोनों को बना लूँगी। मैंने आर डी को भी बना लिया और आर एल को भी बना लिया। ये मेरी ड्रेन की वायर थी, इस पर मैंने एक आर डी बनाया, उसके अगले एंड को ग्राउंड किया, आर एल बनाया, उसके अगले एंड को मैंने ग्राउंड किया। ठीक है, प्लीज़ नोट कि इत्तेफाक से आर डी का अगला एंड ग्राउंड था और आर एल का भी अगला एंड ग्राउंड था। जब भी मैंने इन सबको मिला के ला के यहाँ सोर्स वाले ग्राउंड से ही जोड़ दिया। आगे जाके सेकेंड ईयर में कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे कि जिसमें सोर्स ग्राउंडेड नहीं होगा, तो उस केस में ये आर नॉट और जी एम वी जी एस ये तो आके चलो सोर्स से जोड़ रहे हैं क्योंकि ये तो मॉडल का हिस्सा है, लेकिन ये जो आने वाले आर डी और आर एल हैं उनके एंड पे तो हमेशा ग्राउंड ही होता है। वो आके फिर सोर्स से नहीं जुड़ रहे होंगे क्योंकि सोर्स ग्राउंडेड उस केस में नहीं होगा। ठीक है, खैर ये तो बात की बात हो गई। बहरहाल इस सर्किट के हिसाब से सारे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए एक्सेप्ट दैट आर जी। अगले स्टेप पे मैंने आर जी को बनाया है। आर जी कहाँ कनेक्टेड है थोड़ा सा नोट करें, ये गेट और ड्रेन के दरमियान में कनेक्टेड है। आर जी इज़ बिटवीन गेट एंड ड्रेन। तो मेरा ये टर्मिनल एक्चुअली गेट था, ये टर्मिनल मेरा एक्चुअली ड्रेन है। मैंने इन दोनों के दरमियान में आरजी को बना दिया, गेट से लेके ड्रेन तक के दरमियान आरजी को बना दिया। तो अभी तो मेरा ये मॉडल सिर्फ तैयार हुआ है जिससे कि मुझे एनालिसिस करनी है, मुझे गेन फाइंड करना है, आर इन फाइंड करना है, आर आउट फाइंड करना है। आर इन फाइंड करने का क्या तरीका है कि अगर मैं इनपुट टर्मिनल जहाँ पे इनपुट सोर्स लगी हुई है इस टर्मिनल से अंदर झांक कर देखूं तो कितनी रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही होगी, यानी इनकमिंग एसी सिग्नल को सर्किट के अंदर कितनी रेजिस्टेंस बियर करना होगी एट द इनपुट टर्मिनल, ये कहलाता है आर इन। सिमिलरली जिस टर्मिनल से आप आउटपुट ले रहे हैं, अगर इस टर्मिनल के अंदर झांक कर देखा जाए तो अंदर कितनी रेजिस्टेंस नज़र आ रही होगी, ये कहलाती है आर आउट, जो कि हम आउटपुट टर्मिनल पे देखते हैं। जो भी आपका आउटपुट टर्मिनल हो, ये हमें सब फाइंड करना है। लेट अस सी हाउ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फाइंडिंग आर आउट। मैं आर आउट को पहले फाइंड करूँगी। अच्छा, एक चीज़ ये देखें कि आर आउट फाइंड करते हुए आप एरो हेड देखिएगा, आर एल को सीधे हाथ पे छोड़ के आर आउट का एरो अंदर की जानिब नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आर एल को आउटपुट रेजिस्टेंस का पार्ट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि आर एल दरअसल लोड रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और लोड रेजिस्टेंस किसका? अगला जो सर्किट मॉसफेट के आगे आके लगेगा उसकी रेजिस्टेंस मॉसफेट के लिए लोड रेजिस्टेंस का काम देगी। तो ये एक्चुअली में मॉसफेट का आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन गेन में इसका इफेक्ट डालते हैं। क्यों डालते हैं गेन में इसका इफेक्ट? क्योंकि अगर आउटपुट की रेजिस्टेंस मौजूद होती है लोड की, तो रेजिस्टेंस जितनी पैरेलल में सॉल्व होती जाती हैं उतनी ही छोटी होती जाती हैं। अभी मैं बताती हूँ कैसे। जितनी ही छोटी होती जाती हैं, तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि जो अगला सर्किट आके आपका यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है उसकी जो आर एल है वो कितनी है। वो हमारे गेन के एक्सप्रेशन में शामिल इसलिए होना चाहिए कि जितनी आर एल की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी वो हमारे गेन को अफेक्ट कर रही होगी। आर एल की वैल्यू जितनी बेसिकली कम होगी हमारा गेन उतना ही प्रोपोर्शनली कम होता चला जाएगा। तो हमें आर एल की वैल्यू के बारे में बहुत क्लियर पता होना चाहिए ताकि हम जो है वो ताकि हम जो है वो अपने गेन को मॉनिटर कर सकें। आउटपुट रेजिस्टेंस के अंदर आर एल नहीं होता। ये क्वेश्चन के सर्किट को ज़रा दोबारा जाके देखें कि आर एल को सीधे हाथ पे छोड़ के वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इस साइड के अंदर जाके देखें क्या रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस देखने का क्या तरीका है कि आउटपुट टर्मिनल के ऊपर
ड्रेन टर्मिनल यानी कि आउटपुट टर्मिनल आपको कौन सा है, ड्रेन टर्मिनल से लेके ग्राउंड तक जितनी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ के ड्रेन टर्मिनल को मॉनिटर करूँ, देखूँ, तो मुझे इस ड्रेन टर्मिनल पे एक R0 नज़र आ रही है जो कि जिसका अगला टर्मिनल ग्राउंड है, एक RD नज़र आ रही है जिसका अगला टर्मिनल के ग्राउंड है। ठीक है, तो इस मुनासबत से एक्सक्लूडिंग RL अगर मैं ड्रेन के टर्मिनल को इंस्पेक्ट करूं तो मुझे बहुत क्लियर नज़र आएगा कि R0 और RD का पैरेलल कॉम्बिनेशन दर हकीकत हमारे पास जो है वो Rout के बराबर है। R0 की वैल्यू पुट की, RD की वैल्यू मुझे पता है, दोनों को पैरेलल में मैंने सॉल्व किया, तकरीबन ये 10,000 ओम्स के करीब या 10 किलो ओम के करीब आंसर आ रहा है। मेरे पास Rout की वैल्यू आ गई। गेन डेलिबरेटली मैंने भी छुड़वा दिया था। नाउ लेट अस सी गेन। देखें, गेन फाइंड करते वक्त यही सर्किट मैंने यहाँ रीड्रॉ किया विद स्लाइट चेंज। गेन फाइंड करते वक्त सबसे पहली बात मैंने क्या किया कि RL को लेना है गेन फाइंड करते वक्त, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। मैंने ये किया कि R0 को, RD और RL को, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है क्योंकि तीनों का ऊपर वाला टर्मिनल कॉमन है, तीनों के बॉटम वाले टर्मिनल के ऊपर ये ग्राउंड लगा हुआ है। तो इसका मतलब है ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में है। मैंने इन तीनों की जगह एक ही रजिस्टर लगा दिया आउटपुट पे। अब आप देखें ये वाली चीज़ तो यहाँ पे मौजूद है, ये देखें ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है V0 और ये GM-VGS। अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि इन तीनों की जगह एक रजिस्टर लगा दिया और उसका नाम दे दिया R0 RL RD। और मैंने ये भी किया कि थोड़ा सा समझने के लिए इस वक्त, ऑल्दो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये किया कि ये जो ग्राउंड था इसको अलग बना दिया और इनके नीचे जो ग्राउंड था उसको अलग बना दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज ये ग्राउंड इससे मिला हुआ, ये कॉमन चीज़ है। आपको इतनी सारी वेरिएशन सर्किट की बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉडल आपने एक मॉडल बनाना है, वो ये मॉडल होगा बस। पिछले पेज पे भी 2-3 मॉडल बने हैं, इतने सारे नहीं बनाने, वो स्टेप बाय स्टेप बताया है। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की एनालिसिस करते वक्त आपने सिर्फ एक AC मॉडल बनाना है, वो ये है बस। पीछे पेज पे 3 मॉडल बने थे, वो नहीं बनाने, ये अलग से ये नहीं बनाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, GM-VGS ले लिया, ये ले लिया। अब अगर मैं कहूँ कि इस ब्रांच में जो करंट है वो कौन सा है, तो मैं क्या कहूँगी, जो भी GM-VGS करंट यहाँ चल रहा है वो यहाँ पर भी तो होगा और उसका डायरेक्शन यूँ जा रहा होगा V0 से इसकी तरफ। ठीक है, और क्या इस तरफ कोई करंट होगा, इस तरफ कोई करंट नहीं होगा। इस तरफ कोई करंट इसलिए नहीं है कि ये तो ब्रांच आगे खाली है, यहाँ से करंट कहाँ जाएगा। तो एक्चुअली में करंट यूँ जा रहा है, इस ग्राउंड से यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है और फिर करंट यहाँ आ रहा है। तो ये सीरीज ब्रांच है, ये वाली पार्ट कोई भी करंट नहीं ले रहा बिकॉज देयर इज़ नथिंग ओवर हेयर, आगे कुछ है ही नहीं। तो जब करंट यूं करके यूं फ्लो कर रहा है, दिस इज जस्ट अ सिंपल सीरीज सर्किट। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो करंट है वो भी GM-VGS है और यहाँ से जो करंट जा रहा है यहाँ, वो भी GM-VGS है। यस, ऐसा ही है। तो अगर अब मैं ओम्स लॉ लगाऊं आउटपुट टर्मिनल पे तो वो क्या बनेगा, 0 माइनस V0। क्यों मैंने ओम्स लॉ यहाँ से क्यों लगाया है, इसलिए लगाया कि मुझे पता है करंट का डायरेक्शन यूं बन रहा है, करंट का डायरेक्शन यूं नजर आ रहा है। जब भी मैंने 0 को पहले रखा, 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 10 रेजिस्टेंस बना किसके बराबर, इस GM-VGS के बराबर। देखें यहाँ पे ये यही चीज़ लिखी हुई है। इसको मैंने रीअरेंज करा, V0 को अलग किया तो मेरे पास V0 आ गया माइनस GM-VGS R0 RD पैरेलल RL। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एनालिसिस, इस मॉडल के अंदर ये RG रेजिस्टेंस तो मैंने इस वक्त कंप्लीट नहीं कंसिडर नहीं की क्योंकि RG रेजिस्टेंस तो यहाँ लगी हुई थी ना। मैंने इसके करंट को कंसिडर क्यों नहीं किया, बेसिक इलेक्ट्रिकल। देखें, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गेन की कैलकुलेशन के लिए हमें ये बात बहुत क्लियरली पता है कि मॉसफेट का जो गेट करंट होता है वो 0 होता है। तो ये जो RG करंट यहाँ, RG रजिस्टर जो यहाँ पे लगा हुआ है उसमें करंट कोई नहीं था,
इसलिए इस वक्त समझाने के लिए मैंने आरजी रजिस्टर को यहाँ नहीं बनाया, ताकि आपको मैं बता सकती कि ये करंट यूं करके जा रहा है। आरजी के अंदर कोई करंट नहीं था, तो जब भी इस वाले करंट अगर मैं यहाँ आरजी को बना भी दूं तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मुझे ये बात पहले से पता है कि आरजी में कोई करंट नहीं है। ठीक है, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी आपको समझाने के लिए इस वक्त मैंने आरजी को नहीं बनाया। वैसे भी आपने डायग्राम बनानी नहीं है, ये बनानी है आपने। आपको पता ये होना चाहिए कि हम आरजी को क्यों नहीं ले रहे। हम आरजी को इसलिए नहीं ले रहे हैं करंट के अंदर के यहाँ आरजी में कोई करंट जब जा ही नहीं रहा, तो यहाँ से आने वाला करंट भी GM/VGS हुआ, ये भी GM/VGS हुआ, ये भी GM/VGS हुआ। अगर मैं यहाँ बनाती तो फिर आप लोगों को डाउट होता कि भाई यहाँ करंट जो है, यहाँ का करंट क्यों नहीं ले रहे। इसलिए नहीं ले रहे कि गेट करंट इज 0, आरजी में कोई करंट नहीं होगा। अच्छा, ये बात हो गई। जब मैंने इसको रीअरेंज किया, मुझे पता है कि अब ज़रा VGS और VN को गौर से देखें। क्या मैं कह सकती हूँ कि दोनों का टॉप टर्मिनल सेम है, दोनों का बॉटम टर्मिनल ग्राउंड पे है? ऐसे ही है, दोनों का टॉप टर्मिनल गेट पे है, दोनों का बॉटम टर्मिनल ग्राउंड पे है। तो इस सर्किट में, सिर्फ और सिर्फ इस सर्किट में जो वैल्यू VGS की है वही वैल्यू VI की है। ओनली फॉर दिस सर्किट। हर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में ऐसा नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस सर्किट में जो VI है वही VGS है। यही मैंने लिख दिया कि इस सर्किट में जो VGS है वही VI है। तो अगले स्टेप में मैंने VGS की जगह VI लिख दिया। ओके, मुझे क्या करना है, गेन फाइंड करना है। आपको पता है गेन किसका रेशो होता है, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज का रेशो होता है। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मैंने किया। जो कुछ भी इस हाथ पे बच रहा है राइट हैंड साइड पे, ये मेरे सर्किट का गेन है। इन सब की वैल्यू मुझे पता है, मुझे GM की वैल्यू पता है। फाइल पुट द वैल्यूज, मुझे गेन मिल जाएगा कंप्लीट। प्लीज़ नोट कि हर न्यूमेरिकल में VGS और VN बराबर नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ इस स्टेप पे आने के बाद ये रेशो फाइंड कर लेती V0 ओवर VGS का, V0 ओवर VGS का गेन सेड्रा में उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है AV से, और V0 ओवर VN का जो गेन है सेड्रा में इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है GV से। दो तरह के सेड्रा में गेन है। अगर मैं V0 ओवर VGS का गेन निकालूं तो उसको कह रहे हैं AV, V0 ओवर VN का गेन निकालूं तो उसको कह रहे हैं GV। इस सर्किट में चूंकि VGS और VN बराबर थे, इस वजह से चाहे मैं V0 अपॉन VGS निकालूं उसकी एक्सप्रेशन भी सेम आएगी, चाहे मैं V0 अपॉन VN निकालूं उसकी एक्सप्रेशन भी सेम आएगी। तो सिर्फ इस सर्किट के लिए GV की वैल्यू और AV की वैल्यू बराबर है, जो कि है -3.3 वोल्ट। डोंट गेट कन्फ्यूज विद दीज एम्पलीफायर सर्किट्स। होपफुली ये बिल्कुल जो 3 आपको मेथड्स मैं भी यहाँ सिखाऊंगी, होपफुली इन्हीं में से जो है मिलते जुलते एग्जैक्ट सर्किट्स आएंगे। ठीक है, तो इफ़ यू मतलब अंडरस्टैंड दिस, आप एम्पलीफायर वाला पोर्शन एटलीस्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, हमारे पास गेन भी आ गया, आर आउट भी आ गया। Okay, lastly for this circuit we are left with finding of the input resistance. Again आप देखें कि मैं मेन सर्किट के ऊपर मौजूद हूँ। जब कभी भी इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो या इनफैक्ट कोई भी रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो और हमें उस टर्मिनल पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आ रही हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर जब जो देखा था बड़ा क्लियर मुझे नज़र आ रहा था कि भाई यहाँ से लेके ग्राउंड तक एक R0 लगी है, यहाँ से लेके ग्राउंड तक एक RD लगी है। क्लियरली मैं आंसर दे सकती थी कि भाई R0 पैरेलल RD वाज माय आंसर। लेकिन इफ़ आई लुक इनटू दिस टर्मिनल, मैं RN फाइंड करने के लिए इस टर्मिनल से यहाँ देखूँगी तो मुझे RG रेजिस्टेंस नज़र तो आ रही है, इसका अगला टर्मिनल ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ समथिंग अ बिट आई मीन कॉम्प्लेक्स। मुझे फिर यहाँ से देखना चाहिए कि क्या इक्विवेलेंट वगैरह निकलेगा, क्या चीज़ होगी। तो इसका हमेशा तरीका ये होता है कि जब कभी भी हमें किसी भी एम्पलीफायर के किसी भी टर्मिनल के ऊपर, नॉट नेसेसरली कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट, जहाँ कहीं भी आपने कोई एम्पलीफायर का सर्किट बनाया है 3-4 स्टेजेस का, अगर किसी पॉइंट पे आप उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, यू अप्लाई अ टेस्ट वोल्टेज सोर्स ऑन दैट टर्मिनल।
टेस्ट वोल्टेज सोर्स हम अप्लाई करते हैं, उस टेस्ट वोल्टेज सोर्स का नाम हम रखते हैं Vx, उसका करंट का नाम रखते हैं हम Ix, और हम कहते हैं कि Vx टेस्ट वोल्टेज सोर्स से करंट जा रहा है Ix। हम एंड में रेशो फाइंड करते हैं Vx ओवर Ix का, तो उस टर्मिनल पे मौजूद जो भी रेजिस्टेंस होती है वो निकल आती है। वो कैसे निकलती है, अभी इसको एक आध एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मैंने क्या किया, और हाँ, जब हम टेस्ट वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो सिस्टम में और कोई भी सप्लाई अगर लगी है AC DC नेचर की तो हम उसे रिमूव कर देते हैं। यानी कि AC सोर्स अगर मेरे पास लगी है तो मैं उसे रिमूव कर दूंगी। क्यों रिमूव कर रही हूँ, बिकॉज मैंने टेस्ट वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है। मैं बेसिकली अब फाइंड करने वाली हूँ इसका इसकी रेजिस्टेंस Vx ओवर Ix। अच्छा, अब मैं ज़रा आती हूँ, मुझे किसी भी तरह टेस्ट वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करने के बाद इस सर्किट से Vx ओवर Ix का रेशो निकालना है। जैसे ही ये रेशो मिल जाएगा, इस पॉइंट की रेजिस्टेंस जिसका नाम है Rn वो मुझे पता चल जाएगी। क्या मैं अब Rg को देख के एक ओम्स लॉ की इक्वेशन लिख सकती हूँ कि इसके इस टर्मिनल के वोल्टेज का नाम है Vx, इसके इस टर्मिनल के वोल्टेज का नाम है V0, तो Ix किसके बराबर होगा, Vx माइनस V0 ओवर Rg इज इक्वल टू Ix। ओम्स लॉ से मैंने ये इक्वेशन लिख ली, Vx माइनस V0 ओवर Rg। अच्छा, अगर मैं इस वक्त इस V0 की कोई एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो वो क्या होगी, V0 की एक्सप्रेशन इस सर्किट की मैं पहले ही अभी प्रीवियस स्लाइड पे लिख चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने देखा था कि वो माइनस ऑफ GM गेन की एक्सप्रेशन में लिख चुकी हूँ कि V0 अपॉन Vi क्या था, GM माइनस ऑफ GM इनटू ऑल दीज रेजिस्टेंस, यही फाइंड किया था। इस वक्त इस सर्किट के इनपुट पे जो सोर्स लगी है उसका नाम Vi नहीं है, उसका नाम है Vx। तो जहाँ जहाँ पिछले स्लाइड के ऊपर Vx लिखा हुआ था Vi लिखा हुआ था, मैं वहाँ Vx लिख दूँ, उससे मुझे V0 की एक्सप्रेशन पता चल जाएगी। V0 बराबर था V0 अपॉन Vi, गेन बराबर था माइनस ऑफ GM इनटू दिस। Vi की जगह मैंने लिख दिया Vx, तो V0 किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ GM Vx RD पैरेलल R0। ठीक है, इसके बराबर हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाएगा, इसमें भी एक Vx का टर्म है, इसमें भी Vx का टर्म है, टेक इट आउट एज कॉमन। ये चीज़ मैंने सेपरेट आउट कर ली। Vx ओवर Ix का रेशो मुझे बनाना है, तो वो क्या होगा, Rg ओवर 1 प्लस GM, ये बन गया। ये GM सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, Rg की वैल्यू 10 मेगा है, ये 1 है, GM इंटू RD पैरेलल RL ये 3.3 बन रही है। जब मैंने इसको वॉल्व किया तो मुझे पता चला कि Rn Rg की टोटल वैल्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि Rg की अपनी वैल्यू क्या थी, 10 मेगा ओम्स थी। Rn बराबर आ रहा है 2.33 मेगा ओम। यानी कि मैं डायरेक्टली इस चीज़ को नहीं निकाल सकती थी कि मैं डायरेक्ट कह दूं कि जनाब इस टर्मिनल से तो मुझे सिर्फ Rg ही नज़र आ रही है, मैं कहूँ Rg मेरी Rn है, ऐसा नहीं है। Rg आंसर मेरा नहीं आया, Rg डिवाइडेड बाय सम फैक्टर मेरा आंसर आया है 2.33, तो आपके पास ये आंसर आ गया। Which is the common gate amplifier? How is it a common gate amplifier? Let us see that. Please note that the AC input signal is applied on the source side. Source पे AC signal दे रहे हैं, output will be collected from the drain terminal. Nothing is on the gate. That means it is actually a common gate amplifier. Again, since no parametric values are available, we are free, we do not need to calculate or perform the DC analysis. However, if in paper you will be asked to you are given with parametric values, तो आपको DC analysis करनी होगी। DC analysis जब आप करेंगे तो आप देखिएगा आपका सर्किट वही बचेगा रफली जैसा कि आप सॉल्व करते चले आ रहे हैं। एक चीज़ मैं जो DC एनालिसिस के हवाले से बता दूं कि ज़ाहिर DC के दौरान ये पूरा पार्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है, DC के दौरान ये पूरा पार्ट भी रिमूव हो जाएगा आपका, ये करंट सोर्स और ये बच जाएगा। अब आप जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाली ब्रांच के अंदर ये वाला जो करंट है, फिर ज़ाहिर पैरामीट्रिक वैल्यूज़ होंगी तो इस करंट सोर्स की वैल्यू आपको गिवन होगी।
चूंकि ये वाली जो करंट सोर्स है ये आपके सोर्स की ब्रांच में लगी हुई है, इसका मतलब है ये आई दरअसल आपके ड्रेन करंट आई की वैल्यू है। ठीक है, तो जब आप अगर सपोज पैरामीट्रिक वैल्यू एनालिसिस इस सर्किट की करने आ जाती है तो आप ये तो रिमूव कर देंगे डीसी के दौरान, ये भी रिमूव कर देंगे डीसी के दौरान, तो आपके पास डीसी के दौरान ये करंट सोर्स की लाइन में बच रही होगी, इसकी वैल्यू गिवन होगी, जो कुछ भी इसकी वैल्यू होगी वो इस सर्किट का ड्रेन करंट होगा, वो यहाँ पे भी फ्लो हो रहा होगा, वो यहाँ पे भी फ्लो हो रहा होगा। इसका मतलब है सर्किट के अंदर ही आपको ड्रेन करंट की वैल्यू गिवन होगी। इस सर्किट में आपको आरडी की भी ज़ाहिर वैल्यू गिवन होगी क्योंकि डिज़ाइन प्रॉब्लम होगा नहीं। आपको ड्रेन का वोल्टेज जो है यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? वीडीडी माइनस वीडी ओवर आरडी इज इक्वल टू आईडी। आईडी आपको ज़ाहिर है ये गिवन है, आरडी आपको गिवन होगा, वीडी निकल जाएगा। सिर्फ इसके सोर्स वोल्टेज को कैलकुलेशन में मसला होगा, वो कैसे निकलेगा कि आपको पता है कि ये मॉसफेट सैचुरेशन में काम कर रहा होगा, इसलिए कर रहा होगा सैचुरेशन में क्योंकि ये जो है वो एम्पलीफायर के तौर पे काम कर रहा है। तो मैं करंट की इक्वेशन लगा लूँगी सैचुरेशन वाली, उसमें से पूरा VGS का फैक्टर फाइंड कर लूँगी। बिल्कुल एंड में जब मेरे पास VGS की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, चूज़ कर लूँगी कि कौन सा ग्रेटर देन VT है, और फिर उसमें से आपके पास आप VG की वैल्यू पुट कर देंगे। जब आपने VGS सेलेक्ट कर लिया होगा कि कौन सा VGS आपने चूज़ करना है, फिर हम एंड में जो VGS हमारा सही आएगा उसमें गेट का वोल्टेज 0 पुट करके सोर्स वोल्टेज निकाल लेंगे। तो दिस इज़ हाउ DC एनालिसिस कैन बी डन फॉर दिस सर्किट। लेकिन ये जो कुछ भी मैंने अभी बताया है ये समझ में तभी आ सकता है कि अगर आपने प्रीवियस जो सर्किट हैं उनकी एनालिसिस बहुत अच्छे से और बहुत कंसंट्रेशन से की हुई हो। एनीवेज इस वक्त तो यहाँ पे DC एनालिसिस नहीं करनी, वी आर जंपिंग डायरेक्टली टू द AC एनालिसिस। ये कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे, VDD की जगह ग्राउंड आ जाएगा, और ये जो भी है ये चूंकि DC करंट सोर्स नज़र आ रही है ये पूरी ब्रांच रिमूव हो जाएगी क्योंकि करंट सोर्स जैसे ही ओपन होगी ये पूरा का पूरा हिस्सा रिमूव हो जाएगा। इसी को देख लेते हैं। ओके, फॉर रेफरेंस पर्पस आई हैव रीड्रॉन द सर्किट ओवर हेयर। और सबसे पहला काम मैंने ये किया कि T मॉडल बेसिकली मैंने यहाँ यूज़ किया है क्योंकि बुक में इन्होंने इस कॉमन गेट को T से सॉल्व किया है। T मॉडल के लिए बेसिक सर्किट सबसे पहले बेसिकली मैंने बना के रख लिया। ठीक है, इसका ये टर्मिनल गेट है, ये टर्मिनल इसका ड्रेन है, ये टर्मिनल इसका सोर्स है। देखिए गेट टर्मिनल पे आपने प्लेस करना है ग्राउंड, गेट को मैंने कर दिया ग्राउंड। ये पूरा का पूरा पार्ट AC एनालिसिस के दौरान रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, सोर्स है ये टर्मिनल, कैपेसिटर शॉर्ट, फिर R सिग्नल रजिस्टर, फिर V सिग्नल, फिर ग्राउंड। सोर्स पे कैपेसिटर शॉर्ट होगा, R सिग्नल होगा, V सिग्नल होगा, ग्राउंड। अब यहाँ सोर्स को देखें, सोर्स पे कैपेसिटर शॉर्ट है, दायरा बनाया ही नहीं, R सिग्नल, V सिग्नल एंड ग्राउंड यहाँ पे आ गया। ड्रेन पे चले जाइए, ड्रेन पे RD रेजिस्टेंस, अदर टर्मिनल ग्राउंड, ये रहा ड्रेन पे RD रेजिस्टेंस, अदर टर्मिनल इज ग्राउंड। फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा, RL रेजिस्टर और अदर टर्मिनल ग्राउंड। ये शॉर्ट होगा कैपेसिटर, RL दूसरा टर्मिनल ग्राउंड। RD और RL के बीच वाला जो टर्मिनल है उसका क्या नाम है? V0। RD और RL के बीच का जो टर्मिनल है इसका नाम है बेसिकली V0। अच्छा, इस सर्किट में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि R आउट निकालते हुए यू विल नॉट बी कंसिडरिंग RL। तो R आउट अब आप यहाँ से जब देखेंगे यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, एक ही रेजिस्टेंस नज़र आ रही है R आउट में, RD आ गई। R0 अगर होती तो फिर हम उस बारे में सोचते। फ़िलहाल जब R0 उन्होंने कंसिडर ही बुक में नहीं कराया है, तो अगर आपसे भी पूछा जाएगा जिस केस में मैंने चैनल लाइन मॉड्यूलेशन कंसिडर किया है पेपर में आएगा तो कंसिडर करना होगा, जिसमें नहीं कराया पेपर में भी वैसे ही आएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, R आउट की वैल्यू आपके पास बड़े आराम से RD के बराबर आ जाती है। इनपुट की वैल्यू R इन की वैल्यू अगर देखना है इस टर्मिनल से, प्लीज़ नोट कि R इन के लिए बहुत क्लियर देखा हुआ है कि V सिग्नल और R सिग्नल को स्किप करते हुए आपने R इन फाइंड करना है। तो वो बेसिकली एरो यहाँ आ रहा है, ऑल्दो कि मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि बेसिकली इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 1/GM। ठीक है, लेकिन फिर भी इन ऑर्डर टू हैव अ कंप्लीट पिक्चर मैंने क्या किया, मुझे कन्फ्यूजन लग रही थी, मैंने इस टर्मिनल के ऊपर
एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स अप्लाई करके देख ली। मैंने इन दोनों को क्यों हटा दिया, मैंने बताया था कि व्हेन एवर वी अप्लाई टेस्ट वोल्टेज सोर्स वी रिमूव एनी अदर एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, मैंने क्या किया, इस सोर्स टर्मिनल के ऊपर Vx लगा दिया और Ix की करंट सोर्स लगा दी। मुझे किसी तरह से भी Vx ओवर Ix का रेशो बनाना होता है, आपको याद होगा, इन ऑर्डर टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑन दैट टर्मिनल। इस टर्मिनल से यहाँ तक इस रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज क्या है, Vx है और 0 है। ओम्स लॉ लगा रही हूँ बेसिकली मैं यहाँ। तो इस रेजिस्टर का करंट कैसे निकलेगा, Ix बराबर होगा Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 ओवर जी एम इज इक्वल टू आई एक्स। वी एक्स माइनस 0 डिवाइड बाय 1 ओवर जी एम इज इक्वल टू आई एक्स। जी एम ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैं वी एक्स ओवर आई एक्स का रेशो निकालूंगी तो 1 ओवर जी एम ही मेरा आंसर आ रहा है आर इन, जो कि मुझे डायरेक्टली भी बहुत क्लियरली नज़र आ रहा था कि इस पॉइंट से लेके नियरेस्ट ग्राउंड तक एक ही रेजिस्टेंस है, वो है 1 ओवर जी एम। बहरहाल हमने कैलकुलेट करके भी इसको वेरीफाई कर लिया। Okay, now in order to find the gain, of course you need this only circuit. मैंने ये आपको समझाने के लिए रीड्रॉ किया है, दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली चेंज इज आई हैव कंबाइंड रजिस्टर आर डी एंड आर एल पैरेलल। इन दोनों को मैंने मिला के एक जगह बना दिया। ये वही सर्किट है जो आपने पीछे पेज पे देखा। टू फाइंड द गेन यूजुअली this step is common for both the common gate and for the common source amplifier that we apply Ohm's law at the output terminal. आउटपुट टर्मिनल पे अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करना चाह रही हूँ तो मैं सबसे पहले तो ये देखूँ कि क्या इस ब्रांच में कोई करंट है। नहीं, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, आगे कोई कनेक्शन किया हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है यहाँ तो कोई करंट नहीं है। इस ब्रांच में जो करंट है उसका नाम है ID, और अगर यहाँ कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ पूरा एक ही करंट जा रहा है और उसका नाम है बेसिकली ID। अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो मैं लिखूंगी 0 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस RD पैरेलल RL इज इक्वल टू द करंट ID। यही मैंने यहाँ ओम्स लॉ में लिखा है, रीअरेंज किया। वी नॉट इक्वल टू माइनस ID इंटू दिस, ID इज इक्वल टू GM/VGS। ये प्रीवियस लेक्चर्स में है मौजूद, GM/VGS के बराबर होता है। इसमें से मैं AV गेन निकाल सकती हूँ V0 ओवर VGS, जो कि AV गेन है वो मेरे पास ये निकल के आ गया। एट द सेम टाइम आई लेबल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज मुझे अभी इससे GV गेन, टोटल गेन निकालना है। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को भी ज़रा गौर से देख लें, VGS को देख लें। गेट का वोल्टेज यहाँ पे 0 है, सोर्स का वोल्टेज यहाँ पे 0 नहीं है, कुछ होगा तो VGS तो यहाँ पे बेसिकली हम कह नहीं सकते कि डायरेक्ट जो है वो या तो VS या VG को लिख दें। लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। मैंने क्या किया है कि इस वाले पोर्शन को रीड्रॉ करके लिखने की कोशिश की है। गेट वोल्टेज ग्राउंडेड है, ये मुझे नज़र आ रहा है। सोर्स बेसिकली यहाँ पे है, तो जो भी सोर्स का वोल्टेज होगा वो ये वोल्टेज होगा। इस पोर्शन को जब मैंने रीड्रॉ किया, V सिग्नल फिर R सिग्नल, V सिग्नल फिर R सिग्नल, फिर उसके बाद सोर्स का टर्मिनल VS, फिर उसके बाद रेजिस्टर 1 ओवर GM, और इसके बाद उसका अगला टर्मिनल ग्राउंड। मैंने इसमें इस पोर्शन को ड्रॉ ही नहीं किया, तो मुझे ये बात क्लियर पता चली कि R सिग्नल और 1 ओवर GM एक्चुअली में एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है, और VS वो पॉइंट है जो इनके बीच में आ रहा है। और मैं इस नेटवर्क पे वोल्टेज डिवाइडर लगा के VS फाइंड कर सकती हूँ। वो कैसे किया, V सिग्नल इंटू 1 ओवर GM डिवाइड बाय R सिग्नल प्लस 1 ओवर GM, इन दोनों को सम कर दिया। 1 ओवर GM दरअसल इस सर्किट के RIN का नाम भी था, तो मैंने 1 ओवर GM की जगह RIN भी लिख सकती हूँ। आई कैन यूज़ बोथ ऑफ दीज सिम्बल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग VS। अब ये VS कहाँ चाहिए होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 में एंड में हम पुट करेंगे। कैसे देखते हैं। मुझे पता है VGS बराबर होता है VG माइनस VS के। ठीक है, VG हेयर इस इन दिस सर्किट इज 0 माइनस VS। VS अभी मैंने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है, मैंने बेसिकली VS ये यहाँ पे पुट कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं VGS की जगह क्या पुट करूँगी, VS की माइनस वैल्यू पुट कर दूँगी, तो मेरा बेसिकली VGS आ जाएगा। ये देख लें, मैंने VS की वैल्यू पुट कर दी, जो भी इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, और माइनस ऑफ GM ये सब कुछ आ गया। इससे V0 ओवर V सिग्नल को अलहदा किया। जैसे ही V0 अपॉन V सिग्नल अलग किया, सेपरेट किया, ये मेरे पास GV गेन को इंडिकेट करता है। ये मेरे पास आंसर आ गया।
ऑल्दो दिस आंसर इज टोटली करेक्ट बट बुक इज शोइंग अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। तो मैंने क्या किया है, थोड़ी सी चेंज मैनिपुलेशन की है इन एक्सप्रेशंस की, ताकि मैं बुक वाला आंसर ला सकूँ। मुझे पता है व्हाट इज़ आर एन इज इक्वलेंट टू 1/gm। मैंने आर एन की वैल्यू पुट कर दी, 1/gm यहाँ भी, 1/gm यहाँ भी। तो इस gm से ये 1/gm कैंसिल हो गया। इस वाले gm का ले लिया मैंने डिनोमिनेटर में एलसीएम, gm एलसीएम आ गया, 1 प्लस GMR सिग्नल ऊपर इसके टर्म बन गई। और अगले स्टेप में ये GM क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से घूम के ये ऊपर आ गया, न्यूमरेटर में आ गया। तो GM इंटू RD पैरेलल RL 1 प्लस GMR सिग्नल, ये मेरे पास टोटल गेन आ गया। अब एक बात ज़रा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि इस वाले जो सर्किट का गेन आया है कॉमन गेट का, इसका जो गेन आया है वो पॉजिटिव आया है, जीवी गेन की बात करी हूँ। अब कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जितने भी दोनों थे, दोनों के जीवी गेन नेगेटिव आए थे। इस पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कॉमन गेट एम्पलीफायर का कोई भी सर्किट हो, एज लॉन्ग एज के गेट पे आप ना इनपुट दे रहे ना आउटपुट, कॉमन गेट एम्पलीफायर का जीवी गेन हर हाल में पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि जब इनपुट और आउटपुट की मैं बात करूँगी, इनपुट आउटपुट एक दूसरे के साथ इन फेज होंगे, जबकि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में नेगेटिव गेन आने का मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा होगा। कैसे, ये देख लेते हैं। कॉमन सोर्स के अंदर दोनों हमने 2 दफ़ा सॉल्व किया कॉमन का सर्किट, कॉमन सोर्स का जीवी गेन जो उसके अंदर आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था और कॉमन गेट का जीवी गेन पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब ये है कि कॉमन सोर्स में अगर ऐसा इनपुट सिग्नल मैं अप्लाई करूँगी तो ना सिर्फ आउटपुट मेरा एम्पलीफायर्ड होगा, बल्कि अगर इनपुट की पॉजिटिव पल्स चल रही होगी तो आउटपुट की उस वक्त नेगेटिव पल्स चल रही होगी, और जब इनपुट की नेगेटिव पल्स चल रही होगी तो आउटपुट की उस वक्त पॉजिटिव पल्स चल रही होगी। यानी कि कॉमन सोर्स के नेगेटिव गेन का मतलब है कि इनपुट के मुकाबले में आउटपुट ना सिर्फ एम्पलीफायर्ड होगा बल्कि फेज इन्वर्टेड भी होगा, फेज उसका चेंज होगा। कॉमन गेट के पॉजिटिव गेन का मतलब ये है कि इनपुट जो है अगर स्मॉल है तो आउटपुट सिर्फ एम्पलीफाइड होगा, उसकी पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जब इनपुट की पॉजिटिव पल्स आएगी आउटपुट की पॉजिटिव होगी, जब इनपुट की नेगेटिव पल्स आएगी आउटपुट की नेगेटिव पल्स होगी। ठीक है, तो कॉमन गेट और कॉमन सोर्स में जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव का ये डिफरेंस है गेन का।